Hello, my friend Namaskar. So, in this class, we are going to see ER diagram. So, this is a main important topic in your database management system. Along with this, we are going to see some MCQs also. So, like that, you can call the MCQ questions and some important questions also we will see related to the subject that usually asked in the exam. And there is another website. From here also we are going to see some MCQ also question. Okay, so first we are going to see the main concept, then we are going to see some MCQ. Okay, so let's start ER diagram. So we are having the name itself, it is mentioned entity relationship diagram. It means entity like anything like you, car, house, school, anything is a entity. Okay, so we are having some relationships among them and the questions is going to be formed from here. So it is ER diagram. Okay, so entity relationship diagram. ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है चीजें अपन वो देख, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट आता है थिंग्स विच इज द visual representations over here. So examiner asks questions from the visual representation of the data. So we are having data, so how you can plot the data on a one page, so you can draw some diagrams and from which how you are going to represent like what is happening in your data and what is the logic behind it. Okay, so it means you are explaining anything from the logic. Let's suppose you watch some movie, आपने कोई movie देखा, so in that movie we are having some story, so they show you some story with the help of some visuals. ठीक है, उसमें हो सकता है कि वीडियोस वगैरह हो, ऑडियो हो सकता है और कुछ इसमें कुछ एक्टर्स होते हैं, ठीक है। सो लाइक दिस वी आर हैविंग वीडियो ऑडियो सम एक्टर्स एंड व्हाट इज द मेन थिंग दे वांट टू शो सम स्टोरी. Okay, so this is known as here. So in same ER diagram we are showing the structure of our any business logic, whatever the program, whatever the thing that you are having, so you are explaining the logical structure of the database. So this is ER diagram. अब इसमें we are going to use some symbols. जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये है आपका ER diagram. So we are having a ER diagram of a school, or we can say student and college like this. So this is student, this is a college. Let's suppose you want to make a database. Let's suppose you want to design a database. So what are the things design? So what are the things that you are going to keep in your mind while designing the database? In the database, what we are having tables. We are having multiple tables. In the table, what we are having the uh, columns in that. So maybe you can have some roll number, maybe you can have name, and a relation is between there in between one table to another table. So like this we are having. So we are going to use some important pictures over here, a showcase that examiner is going to ask, and we are going to draw our main diagram. ओके, सो दीज आर द थिंग यू नीड टू रिमेंबर. इसको याद कर लो, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन इज देयर. सो एंटिटी, व्हाट इज अ एंटिटी? द एंटिटी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, जैसे कि है कार है, स्टूडेंट है, आपका स्कूल है. सो दिस इज एन एंटिटी. सो वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द एंटिटी इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल. एक रेक्टेंगल के फॉर्म में एक एंटिटी होगी. नाउ वी आर हैविंग वीक एंटिटी, इट मींस डबल रेक्टेंगल. ठीक है, so you have to remember, there is no shortcut, you have to remember. Then we are having relationships it shown like this. ठीक है, इसको हम यूजुअली बोलते हैं डायमंड कहते हैं. now we are having weak relationship, it means two, or we can say double diamond. then we are having attribute, जैसे कि आपका नाम है, आपका रोल नंबर है. so this is like this, so it is attribute. then we are having key attribute, it means the thing which is having a primary key. ठीक है, which is key attribute. then we are having multi value attribute, like your
mobile number. So you may have an Airtel SIM, you may have a Geo SIM, you may have a BSNL SIM, you may have a Vodafone SIM, like this, any SIM. Now we are having derived attribute. It means let's suppose the attribute which is not present in the original table, जो आपकी थी टेबल उसमें नहीं था, जैसे यहाँ पे एक एट्रीब्यूट था DOB, ठीक है. So you have derived the attribute of age. So from the DOB you have find out actually the attribute was not present in the table, but you have find out. So this is represent in the form of ellipse. We are seeing the dash ellipse. ठीक है. तो यहाँ पे इन्होंने इन शॉर्टकट दे हैव मेंशन ईच एंड एवरीथिंग दिस. इसको याद कर लो. ये इतना है बॉक्स है. Just remember it. This is very very important from exam point of view. This is one liner and you can easily remember whenever you are having exam. You don't need to remember each and everything. You just need to write down. So these notes I will say to you. Also, if you want to take a screenshot, you can take a screenshot. इसको याद कर लो. Please just remember it, because this is the complete ER diagram. If you have remembered this, then it means approximately 70% of your ER diagram it is already completed. It is very easy topic and usually examiner ask 1 mark question from this topic. एक नंबर का क्वेश्चन usually एग्जाम में आ जाता है. ठीक है. So what we are having: rectangle, ellipse, diamond, line, double ellipse, dash ellipse, double rectangle, double line. Okay. I hope it is clear to you. Now, if you have any doubt, let me know. Otherwise, I will move on. Now, ER model. So, what are the things we are having in that? We are having entity. एंटिटी जैसे हो गई यू. आप एक एंटिटी हो, कार एक एंटिटी है, टूल एक एंटिटी है. So in that entity we can also have a weak entity. It means it is being derived, it is dependent on this entity. ये इस पे depend कर रही है. So we will see this later on. Then we are having attribute. So in the attribute we can have key attribute, we can have composite attribute, we can have multiple attribute, multi-valued, or we can say derived attribute. जैसे derived attribute आपके age. Now we are having relationships one to one to many, many to one, many to one. This thing we will see later on. ठीक है. So these are the things. Now, what are the main component in a ER diagram? In a ER diagram, the main component we are having entity, attribute, and relationship. Okay. So let's suppose we are having entity over here. This is an entity. So student is entity and college. It is also an entity. So student and college both are entity over here. Now we are having one college and M. M means many. M means होता है many. So this relationship and this is study. Study is what relationship? This is not a relationship that you have think. This is a normal relationship. यहाँ पे क्या हो रहा है? So why they are related? How they are related? So यहाँ पे how they are related? This is not a relationship. आपका होता है boyfriend girlfriend वाला. This is not like this. So it is how they are related. I mean, student and college they are related with something. So what is the relation between them? So they are related with study. It means many students can study in a one college. So this is many to one. Okay, M to one. It means many students can study in a one college. It is many to one like this. Okay. Now we are having a weak entity. It means a attribute which don't which cannot be uniquely identified by its own. मतलब कि जैसे कि मैं आपको इन लेमन एग्जाम्पल में बताता हूँ. दिस इज योर पेरेंट एंड दिस इज योर चाइल्ड. सो चाइल्ड कैन नॉट एग्जिट विदाउट द पेरेंट. अगर पेरेंट होंगे तो इट मे और मे नॉट हैव चाइल्ड. अगर आपके मॉम डैड होंगे तो आप एग्जिस्ट हो सकते हो, नहीं भी हो सकते हो. ठीक है. इट मीन्स यू डोंट हैव एनीथिंग बाय योर ओन. यूनिकली आइडेंटिफिकेशन नहीं होता.
Okay? So unique identity is missing. So you cannot exist without the parent attribute. So this attribute, it is dried, or we can say depend on the bank list. So a बैंक होगा तो उसके अंदर बैंक अकाउंट होंगे. So बैंक account cannot exist. Yes, bank can exist without bank account. How? Let's suppose a bank can have a loan account. यहाँ पे आपका लोन अकाउंट हो सकता है, आपका एफडी अकाउंट हो सकता है, आपका आरडी अकाउंट हो सकता है, आपका यहाँ पे कुछ आपने हो सकता है लॉकर ले रखा हो, उसका आईडी हो सकता है. ठीक है. सो वी मे और मे नॉट हैव बैंक अकाउंट, बट if it is having, so it means it is directly dependent on this. So both are entity, ये भी एक entity है, ये भी एक entity, both are entity, but this entity is depend on this, so that's why it is double rectangle. That's why it is double rectangle, and it is a normal rectangle. It is a normal rectangle. So this thing we have seen over here. जैसे कि आपने ये देखा था, entity, and we are having weak entity. So like this. This is the representation. So you have to remember the diagram. Otherwise, in the examination, you are going to face some problem. ठीक है. Later on हम इतने सारे एमसीक्यूज देखेंगे, तो इनसे आपके बहुत सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. Like this, we are having. तो आई बिलीव यू ऑल ऑफ यू हैव सीन सम एटीएम. आपने एटीएम देखा होगा अपनी लाइफ के अंदर. ओके. नाउ इन एटीएम वी आर हैविंग ए एटीएम आईडी. सो दिस इज एन एट्रीब्यूट. ये क्या एट्रीब्यूट है? एंड व्हाट इज दिस? दिस इज एंटिटी. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज रिलेशनशिप. तो यहाँ पे क्या है? ये बोल सकते हो डबल डायमंड. इट मीन्स इट इज अ वीक relationship. Now it is again entity, but it is a weak entity. Weak entity, so we can say double rectangle. Okay. Now we are having ATM ID, we are having address, we are having time. So ये क्या attribute है? So it is an ATM. Now this, there is a relation between these two entities. Yes, two entity can have a relation, but the relation what they are having, it is a weak relation. और we can say यहाँ पे बोल सकते हैं कुछ भी ऑपरेशन, फाइनेंस ऑपरेशन. So anything which is happened over here, so this is a weak entity. So एटीएम में आप जाओगे, if you are going to visit the ATM, so you may or may not do a transaction. Sometime you just go and you just check how much is your account balance. So in ATM we are having two type of transaction. First is a financial transaction, and second is non financial transaction. So this is diagram is having a transaction number and amount and type. It means it is a financial transaction. So आप एटीएम में गए, so आपने, हो सकता है कि बहुत लोग होते हैं एटीएम के अंदर जाते हैं सिर्फ एसी की हवा खा के वापस आ जाते हैं. तो it means and transactions may or may not happen in the ATM. ठीक है. So maybe ATM is not working. It can also happen. So in the transaction, we are having transaction number, amount, and type. So this is a weak attribute. So weak entity. So this entity it depend on the ATM. ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये आपके एटीएम पे डिपेंड कर रहा है. So like this. So this is the difference between them. Strong entity set. Strong कुछ नहीं होता. एक नॉर्मल एंटिटी सेट होता है. नॉर्मल को आपने स्ट्रॉन्ग कह दिया, नो प्रॉब्लम. वीक एंटिटी सेट. एंटिटी सेट हैज अ प्राइमरी की. तो इसमें हम हो सकते हैं एटीएम आईडी इज अ प्राइमरी की. लेट सपोज दिस इज एटीएम ऑफ आईसीआईसी बैंक. हो सकता है कि इंडिया के अंदर 20,000 या हो सकता है कि 80,000 आपके एटीएम हो आईसीआईसी बैंक के ऑल ओवर इंडिया. सो ऑल एटीएम्स आर गोइंग टू हैव सम यूनिक आइडेंटिफिकेशन. ठीक है. सो वीक एंटिटी इट डज नॉट हैव इनफ एट्रीब्यूट टू बिल्ड अ प्राइमरी की. ठीक है. इट इज रिप्रेजेंट इन रेक्टेंगल, इट इज रिप्रेजेंट इन डबल रेक्टेंगल फॉर्म. It contain a primary key, it contain a partial key, which is by dash by and dash. So it may or may not have. ठीक है. The member of the strong entity is called dominant entity set. The member of weak entity is called known as
सब ऑर्डिनेटेड सेट। ठीक है, इसमें ये और कुछ नहीं है। Now we are having attributes. So we have seen we can have key attributes, we can composite attribute, we can have multi-valued attribute, we can have derived attribute. ठीक है, अभी एमसीक्यू देखेंगे। की एट्रीब्यूट है, जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर है, दिस इज माई की एट्रीब्यूट। सो अ स्टूडेंट इन अ क्लास, वी कैन हैव मैनी स्टूडेंट, सो ऑल कैन हैव अ नेम, एज, एड्रेस, बट यूनिक आईडी क्या होगा इन अ टेबल? एट सपोज यू आर हैविंग अ टेबल ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, इसमें जो रोल नंबर है वो क्या है? इट इज योर प्राइमरी की। इट इज योर प्राइमरी की। तो दिस थिंग ये कह रहा है कि एट्रीब्यूट क्या है, यहाँ पे रोल नंबर है इन योर टेबल। नाउ वी आर हैविंग अ कंपोजिट लाइक एड्रेस। सो एड्रेस कैन हैव मल्टीपल वैल्यू लाइक पिन, वी कैन हैव स्टेट, वी कैन हैव कंट्री, वी कैन ऑल्सो हैव लाइक दिस। So it is a composite attribute. Now, multi-valued attribute. It means it can have multiple value, like your phone number. Now we are having derived attribute. So it means it was not over there, but you have find out. जैसे कि स्टूडेंट की लिखा था DOB, तो फ्रॉम द DOB यू हैव ड्राइव एज। किस फॉर्म में होगा? इस फॉर्म में होगा, डैश वैल्यू। ठीक है, यहाँ अपन ने देखा था डैश वैल्यू। ठीक, जैसे कि ये है आप, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो दिस इज व्हाट की एट्रीब्यूट। Okay, no problem, my friend. Now, this is what derived attribute. This is a normal attribute, and this is what multi-value. Okay. Now, this whole entity. अब यहाँ पे जैसे age है, so from the DOB we can find the age also. Now, इसमें एक MCQ क्वेश्चन आता है, जैसे ये है। In ER diagram, a double ellipse is represent to what it is going to represent. This is a MCQ. Like in ER diagram, a double ellipse, it is used to represent what? So the answer of this question, it is multi-valued attribute. Yes, just stay in this class. After this class, we will discuss about this. Okay, just stay in this class. Okay. So let's move ahead. Now, in a relationship, we can have one-to-one relationship, one-to-many, many-to-one, and many-to-many. तो ये आपका है 1 to 1। सो अ पर्सन हैज अ पासवर्ड, सो एक पर्सन का एक ही पासपोर्ट होगा। नाउ 1 to many, सो अ कस्टमर कैन प्लेस मैनी ऑर्डर। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हो, सो अ कस्टमर कैन प्लेस मैनी ऑर्डर, आप बहुत सारे ऑर्डर प्लेस कर सकते। मैनी टू वन, मैनी स्टूडेंट आर गोइंग into one college, many students are going into one college। many to many, many students have been assigned to many project, or we can say many subjects। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैन हैव मैनी सब्जेक्ट एंड मैनी सब्जेक्ट हैव बीन स्टडीड बाय मैनी स्टूडेंट, सो इट इज अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या है 1 to 1, कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। सो एग्जाम इज गोइंग टू गिव यू अ रिलेशनशिप, कुछ एक रिलेशनशिप देगा, स्टेटमेंट देगा, फिर वो पूछेगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दैट, यहाँ पे कौन से रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है। जैसे कि ठीक है, आगे हमसे क्वेश्चन देखें यहाँ पे।
जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। Anthony is working on coordinating of doctors and patients in a large urban hospital. With the large number of doctors with varying specialties and patients that may have more than one alignment, he likely the relationship among might be noted as. कौन सा इसने नोटेड किया हो? तो यहाँ पे क्या है, मैनी डॉक्टर्स है, मैनी पेशेंट्स हैं, और उनमें अलग अलग स्पेशलिटीज वगैरह, जो डॉक्टर्स हैं उनकी अलग अलग स्पेशलिटीज वगैरह यहाँ पे है। तो इसने जो यहाँ पे ड्रॉ किया है वो किया है मैनी टू मैनी। So like this, he can give you a statement and you need to check this. Okay. Like this exam can give you. Now we are having total participants. डीएसए की क्वेश्चन पूछ, नहीं वो अलग रहता है, डीएसए आपका अलग रहता है सब्जेक्ट, इसमें यूजुअली नहीं आता है। डीएसए के अलग रहते हैं क्वेश्चन, इसके अंदर ईआर के अंदर आपका डीएसए नहीं है। Total participants of entity set. A total participants of an entity set represent that each entity in entity set must have at least one relationship in the relationship set. For example, in the video, like each college must have at least one associate student. जैसे कि यहाँ पे ये है कि in ER diagram, total participants of college entity set in study in relationship set. This indicates that each college must have at least one associate student. यहाँ पे जो स्टूडेंट है, जैसे स्टूडेंट आईडी हमने यूनिक बना दी, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके जो है कॉलेज, तो हर एक स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी कर रहा है। तो नाउ इट मीन्स दैट इन सम कॉलेज, जैसे कि आपका ये हो गया मैनी टू मैनी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लगा दिया स्ट्रॉन्ग एंटिटी, सो इट मीन्स यहाँ पे ऐसा कोई होगा कॉलेज जिसमें हो सकता है कि स्टूडेंट हो 10, किसी में हो सकता है कि 100 स्टूडेंट हो, किसी में हो सकता है 200 स्टूडेंट हो, किसी में हो सकता है कि 20,000 स्टूडेंट हो, बट एटलीस्ट वन स्टूडेंट तो होगा ही होगा, ठीक है। सो देर इज नो कॉलेज इन इंडिया और इन एनी वे देर इज नो स्टूडेंट, सो विदाउट स्टूडेंट देर इज नो कॉलेज एग्जिस्ट, सो दैट्स वाई इट इज टोटल पार्टिसिपेंट्स। That's why it is total participants. So it is represent in the form here. ठीक है, तो इसको याद करना, आपको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है इन डबल लाइन। लेट्स मूव अहेड। ठीक है, ये एंटिटी सेट हो मतलब कैसे, स्टूडेंट है, कोर्स है, प्रोफेसर है, इनके बीच में रिलेशंस वगैरह बना दिया है, असाइन एट्रीब्यूट्स हो गए हैं। के बाद में जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट आईडी इसमें हो गया, की एट्रीब्यूट है, इसमें कोर्स आईडी की एट्रीब्यूट है, इसमें एम्प्लॉय आईडी की एट्रीब्यूट है। यहाँ पे रिलेशनशिप्स बना दिए इन्होंने, ठीक है। नाउ इन द ईआर डायग्राम वी आर हैविंग जनरलाइजेशन, ठीक है। सो इट इज अ प्रोसेस of which common attributes of for more than one entities form a new attribute. The newly formed attribute is called generalized entity, ठीक है। में होता है क्या है, ये याद करना, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू यहाँ से आता क्या है। जनरलाइजेशन यूज बॉटम अप अप्रोच, एमसीक्यू में आएगा, विच अप्रोच द जनरलाइजेशन यूज इन ईयर डायग्राम। तो जनरलाइजेशन यूज बॉटम अप्रोच वेयर टू और मोर लेवल एंटिटीज कंबाइन टू फॉर्म ए हायर न्यू एंटिटी। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट है, टीचर है, ग्रेड है, सैलरी है, इनको हमने combined किया and we have formed a new entity called person. This person is going to have a name and it is going to have an address. So we are going toward bottom up approach. ठीक है, bottom up approach. So MCQ important है। The new generalized entity can further combine together with lower entity to create a further higher level of generalized entity. Now
Specialization क्या इट इज अ प्रोसेस ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड इनटू टू सब एंटिटी. यू कैन थिंक ऑफ रिवर्स ऑफ जनरलाइज. ऊपर देखा, इट इज व्हाट, इट इज अप टू बॉटम. ठीक है, टू एंटिटीज combine together to form ये specialization is a top down process. Which process is this? This is top down process, important है. So the idea is to find the subset of entity. entity को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो. मान लो कि जैसे आपने लिख दिया इंजीनियर. ठीक है, अब इंजीनियर में हो सकता है कि सीएस का हो, आपका इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो, सिविल का हो, लाइक दिस. तो एम्प्लॉय यहाँ पे है, स्पेशलाइजेशन में हमने कह दिया एम्प्लॉय है तो क्या है वो, इट इज ए टेक्नीशियन है, इट इज ए इंजीनियर है, इट इज ए अकाउंटेंट है. व्हाट एम्प्लॉय यू आर हैविंग. नाउ वी आर हैविंग एग्रीगेशन. Aggregation is a process in which single entity alone is unable, not able to make sense in a relationship. So the relationship of two entity acts as a one entity. So एक relationship अकेला कुछ नहीं है, so alone it is not there, so we are going to combine. So two entity act at one entity. It sounds confusing, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, तो मान लो कि जैसे ये है एम्प्लॉय है और आपका है प्रोजेक्ट. यहाँ पे है आपका मैंने जिसको आपने फॉर्म कर दिया, एक एंटिटी बना. लाइक दिस यू हैव मेड दिस एंटिटी ओवर. ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट ये था, एक बार यहाँ देख लेते कुछ मिस हो. सो इन in generalization we go to the top, in specialization we go to the bottom. एंटिटी क्या है देख लिया. एक एंटिटी हो गया, की एट्रीब्यूट हो गया, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, जैसे दिस ईयर डायग्राम. तो वी आर हैविंग अ बुक, इट इज एंटिटी. बुक में जैसे लिख दिया बुक आईडी, दिस की एट्रीब्यूट. नाउ books, many books have been published by many publishers. So we can have also over here. So it can also have an ID over here. फिर बुक्स है तो उसको स्टूडेंट्स लेंगे. फिर स्टूडेंट्स ने ड्यू कब है, रिटर्न कब है, इशू कब हुआ, फिर स्टूडेंट्स का वो अलग से वो बना सकते हो मेंबरशिप फॉर्म. लाइक दिस, लाइक स्टूडेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम. if you want to make, so you can make also like this. So like this we are having a form of generalization. We are having tiger, lion, elephant. What is this? This is an animal. So this is bottom up approach. का जो रिप्रेजेंटेशन रहता है ऐसे रहता है, इसे याद कर लेना. ये यूनियन है और कुछ नहीं. यूनियन इतना यूजुअली एग्जाम में नहीं आता है. जैसे कि ये है. सो यू आर हैविंग थ्री टेबल्स. ये है आपकी टेबल वन, ये है आपकी टेबल टू, ये है आपकी टेबल. So we are having entity 1, entity 2, entity 3. So in that we are having some attributes. This is job. This is the key attribute. This is the entity. Employee is the entity. Key attribute is employee ID over here. Branch is there. Branch is the entity. And we are having the branch name as a key attribute. Like this we have drawn. So the same pictorial view we have drawn over here. तो यहाँ पे आपने बना लिया टोटल पार्टिसिपेंट यू हैव क्रिएटेड ओवर हियर. जैसे ये आपका क्या है, वीक है, वीक रिलेशनशिप. ये क्या आपकी वीक एंटिटी. ठीक है, लेट्स सी सम एमसीक्यू आल्सो ओवर हियर. जैसे कि द थ्री मेजर पार्ट्स ऑफ एन एंटिटी रिलेशन डायग्राम. कौन कौन से होते हैं मेजर पार्ट. एंटिटी तो होना ही होना चाहिए, विदाउट एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता.
एंटिटी यहाँ पे भी है, एंटिटी यहाँ नहीं है, एंटिटी यहाँ नहीं है, एंटिटी यहाँ पे है। उसके बाद डेटा फ्लो में रीड नहीं किया, तो ये नहीं, इन दोनों में प्रोसेस, प्रोसेस अभी कभी रीड नहीं किया, इट मीन्स डी इज द राइट आंसर लाइक दिस। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए डेटा मॉडल, डेटा मॉडल बेसिक ब्लॉक है एंटिटी, एंटिटी होगा तो ही आगे चलेगा, क्योंकि नाम ही ई आर डायग्राम है, तो ई के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कि विच वुड नॉट लाइकली टू बी एंटिटी, इसमें कौन सा एंटिटी नहीं हो सकता, स्टूडेंट एंटिटी हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, क्लास हो सकता है, प्रैक्टिस हो सकता है। अनरोल क्या है, अनरोल में अपन रिलेशनशिप बनाते हैं, जैसे वन टू वन एनरोल है, वन टू मैनी एनरोल है, मैनी टू मैनी, सो रिलेशनशिप में यूज होता है। देखो एक की अगर मल्टीपल वैल्यूज है सिंगल एंटिटी की, तो सेपरेट एंटिटीज दोज एट्रीब्यूट आर मूविंग फ्रॉम, सो यू आर मूविंग टूवर्ड्स फर्स्ट नॉर्मल। अब जैसे यहाँ पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ही है, the number of entities to which other entity can be associated via relationship is expressed as a cardinality. It means कितने आपके यहाँ पे रोज आ रही हैं, कितने यहाँ पे रिलेशनशिप सेट्स हो रहे हैं, इट इज नोन एज कार्डिनलिटी। ठीक है, द रिलेशनशिप रिलेशन प्रोड्यूस फ्रॉम ईआर डायग्राम विल ऑलवेज विल बी इन थर्ड नॉर्मल, ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो क्वेश्चन इसके से इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में यूजुअली आते हैं। आपका जो ई आर है मॉडल किस पे वर्क करता है, 3NF, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ऐसी है, ई आर मॉडल डैश इट डिस्क्राइब द डेटाबेस बाय स्टोरिंग इस डेटा, सो विदाउट एंटिटी कुछ नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटी, एंटिटी की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जैसे अपन ने यहाँ पे देखे थी। यार कोई भी एक एंटिटी है, मान लो कि जैसे ये एंटिटी एम्प्लॉय एक एंटिटी है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो क्या होगा, एट्रीब्यूट्स। What are the two ways in which entities can participate in a relationship? रिलेशनशिप में होता है क्या है आपका, जैसे वन टू वन होता है या वन टू मैनी होता है। एक तो ये होता है, दूसरा आपका हमने देखा था कि टोटल और पार्शियल पार्टिसिपेंट्स देखा था अपन ने, टोटल और पार्टिसिपेंट, जैसे ये वाला था पर टोटल, तो इसके रहते हैं आप, टोटल और पार्शियल। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ और कुछ नहीं है। द डिग्री ऑफ ए रिलेशनशिप इन डेटाबेस, तो रिलेट होता है कि कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट है, बी इज द राइट आंसर। जैसे एक ये दे दिया आपने ईयर डायग्राम, अब इसमें ये पूछ रहा है कि गिवन द डायग्राम, सो एम्प्लॉय है, हैज एम्प्लॉय आईडी, तो ये पूछ रहा है कि क्या है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय आईडी है, तो ये वन टू वन है, वन टू मैनी है, मैनी टू मैनी है, वन टू वन। तो यहाँ पे देखो एक एम्प्लॉय की एक ही एम्प्लॉय आईडी होगी, सो इट इज वन टू वन। एट्रीब्यूट्स इन एंडिशिप डायग्राम आर रिप्रेजेंट, एट्रीब्यूट्स किस में होते हैं, एलिप्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, अभी अपन ने देखे थे कि एलिप्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स किस में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एलिप्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम? कौन सा पार्ट नहीं है? एलिप्स होता है, रेक्टेंगल देखा था, डबल हेक्सागोन हमने देखा ही नहीं, हेक्सागोन नहीं आता, तो इट इज नॉट देयर. Let E1 and E2 be two entity in a ER diagram with simple single valued attribute R1 and R2 having two relationship between E1 and where R1 is one to many and R2 is many to many. R1 and R2 do not have any attributes of its own. What is the minimum number of table required to represent this situation? ठीक है, दो एंटिटी हैं तो इसका आंसर होगा 3. तो इसने दो एंटिटी बना दी, जैसे E1 और E2 दो एंटिटी बना ली, जैसे कि यहाँ पे अपन देखते हैं. जैसे कि एक एंटिटी बना ली मैंने E1 और दूसरी एंटिटी बना ली E2. इसमें एक रिलेशनशिप मैंने बना दिया R1, एक रिलेशनशिप मैंने यहाँ बना दिया R2. अब इसमें ये कह रहा है कि R1 R2 है, R1 में है वन टू मैनी, R1 में है वन टू मैनी, वन टू मैनी. R2 में है मैनी टू मैनी, R2 में है मैनी टू मैनी. ठीक है. अब जो आपका जब भी आपके पास मैनी टू मैनी आए तो ऑलवेज वी नीड टू टेबल, इसमें आपका दो टेबल की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. इसमें आपके और जब भी आपके पास वन टू मैनी या वन टू वन हो तो उसमें हमेशा वन टेबल की रिक्वायरमेंट होती है. तो द राइट आंसर विल बी द थ्री टेबल. ये एक ट्रिक है, इफ यू वांट टू रिमेंबर, याद कर लेना. अब इन्होंने क्या किया है, एक होगी टेबल जिसमें E1 एंटिटी और आपकी जो E2 एंटिटी है उसके साथ हम एक रिलेशनशिप रख लेंगे. ये जो E1 है उसके लिए अपने पास रखेगी टेबल, और जो तीसरी टेबल है इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा उनको स्टोर करेगा R2 वाला. ठीक है. एक जो रहेगी टेबल जिसमें वन टू जो मैनी रिलेशन वो रहेगा, दूसरी जो है टेबल उसमें मैनी टू वन, जो तीसरी टेबल उसमें मैनी टू मैनी. सो मैनी टू मैनी ऑलवेज रिक्वायर टू टेबल, दो टेबल आपके रहेंगी ही रहेंगी. ठीक है. तो इसमें तीन टेबल कौन कौन सी? एक टेबल जिसमें इवन एंट्री रख सकते हो, एक टेबल जिसमें E2 एंट्री रहेंगे, एक जो रहेगी टेबल जिसमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यू कैन स्टोर. सो यू कैन स्टोर R1 विथ एनीवन. अगर यहाँ पे भी वन टू वन होता सो दो टेबल की रिक्वायरमेंट होती. जहां पे आपका मैनी टू मैनी आ जाए, इफ इन द टेबल मैनी टू मैनी लिखा हो कहीं पे भी, ये एक एम के लिए इसको रिलेशन स्टोर करने के लिए टू टेबल आपको हमेशा रिक्वायर्ड होगी, मिनिमम टू टेबल इसके लिए होगी. अगर आपका वन टू वन है, वन टू मैनी है, मैनी टू वन है, या ये तीन होते हैं, इनके लिए एक ही टेबल चाहिए. बट ये रिलेशनशिप हो तो इसके लिए टू टेबल आपको चाहिए टू स्टोर. कैसे ही आ गया मैच द फॉलोइंग. भैया ये किस में होता है? एट्रीब्यूट में है. ये आपका क्या है? ऑप्शनल वन है. ये आपका क्या है? मैंडेटरी है. ये रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल होता है क्या है? रेक्टेंगल आपका रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है. सो फोर्थ का ए है और वन का बी है. तो ए इसका आंसर हो जाए. ठीक है. टू का सी. ये अपन ने यहाँ नहीं देखा था, ये याद करना. जैसे आपका ये नहीं देखा था, बता देता हूँ. अगर ऐसा गिवन है तो ये रिप्रेजेंट करता है ऑप्शनल. O means optional. O means optional. O means optional. ठीक है. So in this figure, if you look at, we are having O. O means optional. So one का C. नहीं, two का C. So two is C. And when we are in the two lines, it is like mandatory, opposite of optional. ठीक है. We have seen many question. Now I believe your ER diagram is almost complete. The more MCQ question you are going to solve, the more understanding you are going to form.
ठीक है, सो आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, यू कैन लेट। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।